देख
Yes, Ashish. Mr. Ashish Pandey, are you there? Ashish, are you there? Yes, ma'am. Please leave the meet. Leave the lecture now. I said leave the lecture now, Ashish. Ashish, did you hear me? I said leave the lecture right now. If you will not leave the lecture, I will leave the lecture. I will not take the lecture. Just leave, I said. Ashish, can you hear me? Yes, actually, no problem. No, Ashish, your behavior was not acceptable. How much attitude you showed me yesterday. I was speaking to you and you left the meeting. Is this the behavior you are doing the same thing with your parents? I'm not going to allow to sit for my lecture. Otherwise, I will leave. तुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा. Otherwise, I will remove you. इससे पहले कि मैं remove करूँ, तू बाहर जा. मुझे नहीं चलेगा ये attitude. मैंने बोला ना तो सुन के लेने का, उसके ऊपर एक भी वर्ड एक्स्ट्रा बोलने का ही नहीं. और मैं बात कर रही हूँ और तू बीच में छोड़ के जाता है, इतना तेरा हिम्मत है? हाँ, मीटिंग तो लीव कर, नहीं तो मैं मीटिंग बंद करूंगी. मैं किसी का लेक्चर नहीं लूंगी. मेरे साथ जिद नहीं करने का. बाहर जा. लीव कर मीटिंग. आशीष, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? एटीट्यूड दिखाता है टीचर को. कुछ बोला नहीं तो. हम लोग के यहाँ पे रास्ते पे पड़े हुए हैं, कैसे भी बात करने का, कैसे भी रहने का. बकवास. I was speaking and that guy left the meeting. नॉनसेंस. उसको मैं लेने ही नहीं वाली हूँ मेरे लेक्चर में. रुलाया नहीं ना. मेरा नाम शबाना नहीं है. आ गए सब लोग. एंड सिद्धेश, यू ऑल्सो पे प्रॉपर अटेंशन इन द लेक्चर. समझा? एकदम ध्यान से सुन सब अच्छे से. If you have not Yes, done anything in the 11th standard, we cannot do anything. Please try to understand that. We are here to help you, but to at one extent. क्योंकि अब ये ऑनलाइन लेक्चर है. We are also facing lots of problem. ऑफलाइन होता तो बात अलग थी. तुझे अकेले किधर साइड में बैठा के पढ़ा सकते थे. So now just try to attend it properly. I'm not saying कि ऐसे सब समझ में नहीं आ रहा होगा. पर एकदम ही तू बोलेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू ऑल जस्ट सी माय रिकॉर्डेड वीडियोस 100 टाइम्स. समझ में आ जाएगा सब. और जब भी डाउट पूछने के लिए बोला ना, तब भी पूछने का डाउट. बाद में मुझे फालतू का बकवास चाहिए नहीं किसका भी. हम लोग यहाँ पे तुम्हारे सर्वेंट्स नहीं है. हम लोग को तुम लोगों ने खरीदा नहीं है.
Okay, I'll start now. So yesterday we have done preparation of alkyl halides by using, first of all, with HX, that is hydrogen halide. Second, we have done by using phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide, right? Now, the C part which we have to do today is, that is by using thionyl chloride. Okay, by using thionyl chloride. Thionyl chloride formula is SOCl2. Okay. Now from this formula, you will come to know that you will get only alkyl chloride, because we are writing here SOCl2. Correct? So I will write down here ROH plus SOCl2. This is called as thionyl chloride. Just heat it. I'm interested in what? RCl. अभी मैंने यहाँ पे RX क्यों नहीं लिखा बच्चों? Because it is thionyl chloride, not bromide, not iodide. Okay. So that is called as RCl plus SO2 plus HCl. Is it very, very clear? So sulfur dioxide will evolve from here, and this will also evolve from here. Just a second. अभी टुडे आई एम द होस्ट फॉर द लेक्चर. अभी जिसका कैमरा बंद रहेगा ना, उन सबको हकलने वाली हूँ. रुको, अभी सबको निकालती हूँ बाहर. तुम लोग को सीधी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. कैमरा ऑन रखने को बोला, मतलब ऑन रखने का. नो, आई विल बी द होस्ट एंड एवरी टाइम आई विल जस्ट कीप ऑन रिमूविंग यू. तुम लोग को एक बार बोले तो समझ में नहीं आता है. इज इट वेरी क्लियर? सो आई एम राइटिंग हियर, सपोज CH3OH plus SOCl2. If you are going to heat it, you will get over here CH3Cl plus SO2 gas will evolve, and HCl also will evolve. So this is called as chloromethane, or it is also called as methyl chloride. Okay, methyl chloride is also nothing but the same thing, and this is called as methanol. आया सबके समझ में? So this is the third method by which you can prepare your alkyl halide using alcohol. So first वाला क्या था? PX3, phosphorus trihalide, phosphorus pentahalide. See, in all those cases, main products are same. Only byproduct क्या आता है? If you are going to use PX3, you will be writing over here phosphorus acid. फिर अगर आप phosphorus pentahalide use करोगे तो what will be your byproduct? It is HCl plus POCl3. If you are using over here thionyl chloride, your byproducts are SO2 plus HCl. Okay, so these are the different byproducts you are going to get by using different reactants. Is it very, very clear? This reaction is clear to everybody? Okay, please copy down this C part by using thionyl chloride. आपको किस पे फोकस करना है? RCl. Now this cannot be used to prepare RBr. This cannot be used to prepare RF. This cannot be used to prepare RI, because we are using over here thionyl chloride, SOCl2. So this is your main product and these two are your byproducts. Okay, please note down this. मार्कोनिकॉफ रूल सब लोग पढ़ के आए आज? Okay. किसी को कुछ नहीं समझा है तो प्लीज आस्क. Let me know once you are done with this. Yesterday we have done Lucas reagent. What is Lucas reagent? Anhydrous
ZnCl2 and concentrated HCl. Okay, and here you are just going to heat it. Even at the room temperature, this reaction takes place. You will get over your methyl chloride. एक reaction देती हूँ, just complete that. CH3, CH2, CH2, OH plus SOCl2. Heat. Complete the reaction. What is the name of this compound? 1, 2, 3. So it is called as propane 1-ol. 1 क्यों लिखा? Because OH can be present at the second position also. So it is propane 1-ol. और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3, CH2, CH2Cl. ये सेम आने वाला है. Plus SO2 plus HCl, right? So this is called as 1, 2, 3. It is called as 1-chloropropane. ठीक है? Just a second, हाँ. आशीष का ये मैसेज था कि सॉरी, हिम्मत नहीं करने का मेरे को उल्टा बोलने का, याद रखो. ऑनलाइन लेक्चर है तो क्या मैं यहाँ से भी तुम लोगों का बराबर वाट लगा सकती हूँ. डोंट यू डेयर टू से अ वर्ड टू मी. मेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं और सर लोग भी नहीं, समझा ना? और तुम लोग किसको भी लेके आओ. अभी आज मैं सबके पेपर्स चेक करने वाली हूँ. अभी देखती हूँ किसमें तुम लोगों ने क्या दिया लगा है उसमें. एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर. स्टार्टिंग से ही. दिस संडे यू विल बी हैविंग MCQ टेस्ट. अभी ये चैप्टर पढ़ाने को टाइम जाएगा. तो दिस संडे यू विल बी हैविंग MCQ टेस्ट ऑन हाइड्रोकार्बन्स 11th वाला. ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स 11th वाला MCQ का टेस्ट है ऑन दिस संडे. इमीडिएटली यू विल गेट योर रिजल्ट. ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स कौन सा? 11th वाला, अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस वाला. ओके, चलो दिस इज डन बच्चों. Yes, ma'am. Done. Yes, Okay, Miss okay. Done. Now first part is done with the preparation. ठीक है? Now second we will prepare. अभी that was from alcohol. Now the second is from hydrocarbons. From hydrocarbon. Can anyone tell me what is hydrocarbon? Hydrocarbon क्या होता है? Which is containing only hydrogen and carbon. Correct? Yes, that's called as hydrocarbons, right? So alkyl halides are formed from saturated as well as unsaturated hydrocarbons we can prepare. ठीक है? So in this, first of all, एक second, ना मेरा पेज ऊपर नीचे, just a minute. So in this, first of all, we are going to do addition of hydrogen halide to alkenes. Okay, we are going to add HX to alkenes, hydrogen halide to alkenes. Now it is a very simple reaction. If I am writing over here, suppose alkyl halides are formed on addition of hydrogen halide to the alkenes. अभी यहाँ पे लिखा है refer 11th standard chapter ये वो, तो अभी मैं आपको example दे देती हूँ. I am writing over here CH2 double bond CH2. I will add HX into this. याद है आप लोगों को कुछ? This alkene is called as symmetrical alkene. This is your ethene. Why it is called as symmetrical? You have to search a double bond, and across the double bond you can see same number of carbon atoms and same number of hydrogen atoms also, right?
So this is called as symmetrical alkene. तो मैं H कहाँ पर भी ऐड कर सकती हूँ और X भी कहाँ पर भी ऐड कर सकती हूँ. So I am getting over here CH2 X CH3 या फिर X यहाँ पर आएगा और H यहाँ पे जाएगा, कुछ भी पॉसिबल है. So in both the cases you are going to get the same result. ये समझा सबको? I can add H here also. I can add H here also. Double bond will go and you will get a single bond. ध्यान से सुनो सब लोग. X will come to this carbon atom and H will come to this carbon atom and double bond becomes single bond. It is called as alkyl halide and this is your alkene. ठीक है? Again I am taking over here CH3 CH double bond CH CH3. बोलो ये alkene जो है it is symmetrical or unsymmetrical? It is again symmetrical. You are having Symmetrical. double bond here, correct? And number of hydrogen atoms are also same, 1 and 1. So it is called as symmetrical alkene. तो symmetrical alkene में अभी suppose इस बार मैं hydrogen यहाँ पर add करूंगी और H I am going to add here. So what is my product? CH3 CH फिर यहाँ पे sorry CH2 हो जाएगा, then CH X ऊपर आ गया and CH3. ठीक है, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, बात एक ही हो गया. You can add H X over here, you can add H over here. ठीक है. Now this is called as Marconi. This is called as symmetrical alkene. But when you are having unsymmetrical alkene, 11th standard, already you have done CH2 CH double bond CH2. Now this is your propene. It is called as unsymmetrical alkene. What is unsymmetrical alkene? When I am having a double bond and you can see on both the sides of double bond carbon to same hai, but hydrogens are not same. So that time it is called as unsymmetrical alkene. And if you are going to add HX, ठीक है, तो अभी HX ऐड करेंगे तो दो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है ना. एक बारी H यहाँ जाएगा, X यहाँ जाएगा. चलो लिखते हैं CH2 CH X CH3. सॉरी ये CH3 था, आई एम सो सॉरी. This is CH3. ठीक है. And second time you are going to add X here and H here. So it will be CH3 CH2 CH2X. अभी दोनों भी केस में nomenclature तो अलग हो गया है ना. So which rule you have to follow over here? You have to follow Markovnikov's rule. Correct? What is Markovnikov's rule? Markovnikov said that when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, negative part of the carbon will go to the carbon atom having less number of hydrogen. ये था statement. If you remember, मैंने याद भी करवाया था तुम लोगों को. When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, negative part of the reagent, ये negative part है X, it will go to the carbon atom having less number of hydrogen atom. और दूसरे वर्ड से मैंने क्या बोला था, भाई कहाँ जाएगा, अपने भाई के पास जाएगा. तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. एक्स किधर जाएगा, बाजू वाले के पास, है ना. तो इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, टेल मी. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट और दिस मैं नंबर देती हूँ. 1 will be the major product or 2 will be the major product. 1 will be the major product. बराबर है ना. ये देखो H भाई है और यहाँ पे इसके पास बहुत ज्यादा H है, तो ये H इसके पास चला गया, तो it will give you a major product. X will go here. So this is your major product and this is your minor product. This is called as Markovnikov's rule. Clear है सबको? Suppose I am writing here one more reaction. CH3 CH double bond CH CH3 CH2. एक मिनट वापस लिखती हूँ. If I'll take over here CH3 CH2 CH double bond CH2 plus HCl. ठीक है, अभी मैंने HCl डाल दिया. You are going to write down two products. First of all, see, it is your symmetrical alkene or unsymmetrical. It is your unsymmetrical alkene. कैसे पता चला? Search the double bond. See the carbon atoms on both the sides. See the hydrogen atoms on both the sides. If they are different, so they are called as unsymmetrical, right? So you are going to add H. अभी H कहाँ जाएगा, अपने भाई के पास इधर, और Cl इधर जाएगा, तो that is your major product
but at the same time you are supposed to write down the minor product also. तो मुझे यहाँ पे अल्काइल हलाइड मिल गया ना, यहाँ पे भी मुझे क्या मिल गया, अल्काइल हलाइड। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर x की जगह पर सपोज Cl लिख दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। आपको नेमिंग देना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज कॉल्ड एज 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अगर एग्जाम में ऐसे आता है दिस प्लस दिस एंड दे विल गिव यू A प्लस B, तो मेजर और माइनर दोनों लिखना है। अगर सिर्फ एरो दिया और कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखना है। एंड यू आर गोइंग टू राइट डाउन दैट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल, क्लोरीन विल गो टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से यू विल गेट, नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस मेन प्रोडक्ट। इज इट वेरी वेरी क्लियर? किसको नहीं समझा? Take 5 minutes, just see it properly. If you have any question, please feel free to ask. Is it very very clear to everyone? मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स में क्या होगा, अभी भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाएगी। अब एच कहाँ जाएगा, अपने भाई के पास नहीं जाएगा, बाजू वाले के पास चला जाएगा। मतलब ये वाला एंटी में ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, ये वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। लेकिन मैंने उसके कंडीशंस बताए थे, व्हाट आर द कंडीशंस, वो सिर्फ HBr के पास साथ पॉसिबल है, and it is taking place only in the presence of peroxide। एरो के ऊपर आपको क्या दिखाई देना चाहिए, peroxide, and it is possible only with HBr। Understood everybody? Is it Yes, very very ma'am. clear? Okay, चलो फटाफट कॉपी करो। Write down the heading from hydrocarbons, first one, addition of HX to alkenes, इथीन टू दिस, ये आपका हो गया सिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे मैंने X ही लिखा है बच्चों, तो ये आपका अल्काइल हलाइड, आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें। इसका प्रोडक्ट मैंने नीचे लिखा है बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग अ स्पेस ओवर देयर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कीन, इट इज कॉल्ड एज ब्यूट टू इन। इधर ऊपर लिख दूं, इधर लिख देती हूँ, दिस इज ब्यूट टू इन। ठीक है, लेट मी नो वंस यू आर डन विद दिस पेज। Gomes, have you understood this? Hemant, Hemant, are you there? Parth, Prathamesh, Raj, साहिल, जैसे ही नाम पुकारा मुझे आंसर देने का फटाफट। ओके, ये समझा सिमेट्रिकल अल्कीन कैसे, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड यू आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऊपर वाले में तेरे को निकाल दिया था ना आशीष, अभी उसके वो वीडियो देख, ये लेक्चर का वापस से वीडियो देख। Done, ma'am. Done. फिनिश, दिस पार्ट इज डन। Yes, ma'am. Done. ओके, चलो कॉपी करो ये फटाफट। दिस इज प्रोपीन, इसका नाम लिखेंगे आप लोग 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। मार्कोनिकॉफ्स रूल, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, इसका मेजर और माइनर आपको लिखना है। शुरू हो जाओ, चलो फटाफट। मैंने थोड़ा दूर तक रखी है।
हाँ ओके, एक मिनट. इट इज ओके नाउ. Yes, ma'am. Thank you. वेलकम. नाउ यू आर फॉलोइंग मार्कोनिकॉव्स. ठीक है, अगर मैंने जैसे ही इसके ऊपर पेरोक्साइड लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉव. तो आपका मेजर माइनर रिवर्स हो जाएगा. दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर. What is the IUPAC name of this compound? 1, 2, 3, 4. This is but 1 ene. Is it right? 1, Yes, ma'am. 2, 3, 4. This is called as but 1 ene. Let me know once you're done with the question. So I'll just keep my camera down. I hope everyone is getting exactly same reaction है 11th standard में, alkenes chapter में. Once upon a time, you have done this. So here we will be writing both the products. आप check करो. CH3, CH2, CHCl. यहाँ पे लगाया CH3 and this हाँ correct हिंडल बराबर. So it is CH3, CH2, 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 Cl. This is 1 chlorobutane and this is 2 dash chlorobutane. बराबर. चलो अभी बताओ मेजर कौन सा और माइनर कौन सा? Which one 2 will be major, which one will chlorobutane. be minor? 2 chlorobutane will be major product. According to which rule? According to Markovnikov's rule. And this will be minor. ठीक है, तो जब हम HX ऐड करते हैं अल्कीन्स में and if it is unsymmetrical, तो मैंने कैसे एकदम सिंपल लफ्जों में बोला याद रखने के लिए, H will go to जहाँ पे ज्यादा H है, अपने भाई के पास चला गया और ये इधर चला गया. एंटी मतलब लड़ाई हो गई, तो अभी H इसके पास नहीं जाएगा, इधर जाएगा. बट एंटी के लिए क्या चाहिए? पेरोक्साइड एंड HBr. तो फिर आप उल्टा कर दोगे प्रोडक्ट. ठीक है, finished everyone? Yes, So I'm ma'am. giving you Done. some questions based on this. You have to solve that fatafat. Complete the following reaction. ठीक है, so your reactions are first one CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2 plus HBr. बराबर ध्यान से देखो. ठीक है, I am writing here major and minor, both the products you have to write down. Second one is CH, सबके IUPAC names भी लिखने हैं. ठीक है, CH3 twice C double bond CH CH3 plus HBr. This time I am putting over here peroxide. अभी समझ जाओ कौन सा आपका मेजर रहेगा. ठीक है, अगेन मेजर एंड माइनर बोथ यू हैव टू राइट डाउन. ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट कंप्लीट करो सबके IUPAC नेम्स के साथ. इसका भी IUPAC, इसका भी IUPAC एंड मेजर एंड माइनर दोनों का IUPAC. एंड विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट वाई अकॉर्डिंग टू विच रूल. यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो किया, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो किया?
All that you have to write down. You will get 5 minutes for this. पेरोक्साइड मतलब एंटी, करेक्ट, लड़ाई हो गई, अभी उल्टा करना है, लिखने का दोनों, लेकिन मेजर और माइनर विल चेंज. ओम साई, डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? ओके. Urmil, is it very clear? Shivam, Niti, Soham, Tejal. Yes, Soham. Yes, Sahil. Correct. Very good. Chalo, Sahil has given answer also. Okay, Niti. एक सेकेंड में आइए, आप लोग लिखो. I am here only. Just a done. Yes, ma'am, done. Okay. What about others? Vendors. Okay. So I will just write down the product. You just see this. Here you will be following Markovnikov's rule. Okay. So H will go to this carbon and Br will go to this carbon. This will be a major product. इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5. So it is pent 1 ene. So we'll get over here CH3, CH2, CH2, CHBr. Then dash CH3. और माइनर में क्या हो जाएगा? उल्टा. ठीक है. So CH3, CH2, 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 CH2Br. इसका IUPAC नेम क्या है? 2-bromopentane. This is 1-bromopentane. Here, since you're observing peroxide and also HBr, ये दोनों conditions are important. What is the IUPAC name of this compound? If you will open this, it will be CH3, CH3, double bond, CH, CH3. In this, you are going to add HBr. So it will follow anti. ये दोनों, इन दोनों के बीच में ऐड होगा ना, इन दोनों के बीच में. अभी भाई का अपने भाई के साथ लड़ाई हो गया, तो अभी H किधर जाने वाला है? इसके पास.
Br will go to this carbon atom. तो ये होगा आपका मेजर CH3CH3 single bond CH Br and CH3 plus minor will be ulta. Correct? H will come here and Br will go here. So it is CH3C CH3. Br will be here. Then CH2 CH3. समझा? इसका IUPAC name 1 2 3 4. So it is 2-methyl 2-methyl dash नहीं 2-methyl but 2-ene. करेक्ट? 2-methyl but 2-ene. और इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4. 1 2 3 कहीं से भी जाओ. 1 2 3 4. So we'll write on here 1 2 3 4. 1 2 3 4. तो राइट साइड से जाते हैं. 1 2 3 4. So it is 2 bromo 3 methyl and what is the name? Butane. समझा? और इसका नाम क्या आएगा? यहाँ से जाएंगे ना. So 1 2 3 4. 2 bromo then 2 methyl butane. समझ आ गया सबको अच्छे से? Why this is major? In this case, because here you are following anti-Markovnikov's rule. 100% clear to everybody? Markovnikov's, anti-Markovnikov's rule. Yes, ठीक ma'am. है? Clear है. हाँ. Okay. अभी यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि you can also prepare dihalides by using vicinal. You can prepare vicinal dihalides also by using alkenes. याद है vicinal and geminal. When halides are present on the same carbon atom, it is called as geminal dihalide. And when halides are present on the adjacent carbon atoms, it is called as vicinal dihalide. याद आ गया? I had given you the definition also. Correct? When halides, both the halides are present on the same carbon atom, it is called as geminal. ठीक है? और जब ये आजू बाजू में होगा, आजू बाजू मतलब 1 2 3, तो इधर का और इधर का चलेगा क्या? इज इट पॉसिबल? इज दिस कॉल्ड एज विसिनल? नो. 0 मार्क्स मिलेगा इसको विसिनल लिखोगे तो. विसिनल किसको लिख सकते हैं? आजू बाजू वाले को. इन दोनों को या इन दोनों को. ये और ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहालाइड. करेक्ट? just a second, मेरा वीडियो पॉज हो गया होगा शायद. ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहालाइड. नाउ how will you do this? I will take alkene CH2 double bond CH2 and I will take over here X2. ठीक है? So this is just an addition product by using chlorine or the bromine in the inert solvent. You have to use over here inert solvent such as carbon tetrachloride. Inert solvent मतलब it will neither react with this nor with this. So अभी क्या होगा? 1x will go here, another x will go here. वैसे भी ये तो symmetrical है ना, तो मुझे प्रोडक्ट तो सेम आने वाला है. CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक x इधर आ गया, एक x इधर आ गया. करेक्ट? सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. प्रोडक्ट लिखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस ब्रोमीन. राइट डाउन द प्रोडक्ट इन CCl4. चलो सबके IUPAC नेम्स भी लिखो. सिर्फ डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक एक हैलोजन ऐड करने का. 1 हैलोजन विल गो हियर, 1 हैलोजन विल गो हियर. ब्रोमीन किधर जाएगा? इन दोनों के बीच में. ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज विसिनल. दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहालाइड. उसकी विसिनिटी में है ना, आजू बाजू में है. दैट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहालाइड. complete these two reactions. Write down the names. Ethene. This is your ethene. नाम लिखना बहुत important है for the reactant as well as for the product. This is called as butene. तो पहले डबल बॉन्ड ढूंढने का और डबल बॉन्ड के आजू बाजू एक एक ब्रोमीन लगाने का. लिखो, कंप्लीट करो.
Done. So here it will be CH2 single bond CH2 Cl and Cl. इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,2 dichloroethane. Correct? It is 1,2 dichloroethane. अभी ये एक Br इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो it is CH3 CH. One Br will come here, then CH, another Br will come here, and then CH3. So it is 1, 2, 3, 4. It is called as 2,3 dibromobutane. ठीक है, समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. अभी एक और रिएक्शन है, इसी में है, इसी के पार्ट्स हैं, मतलब दिस इज अनदर पार्ट दैट यू आर गोइंग टू फॉर्म हियर, विसिनल डाइहालाइड. ठीक है, वन मोर इज देयर. व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ओवर योर अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और अगर आपने क्लोरीन लिया, राइट, and if it is heated either with the chlorine or the bromine at a very high temperature, see the condition, at a very higher temperature, so यहाँ पर क्या होता है, एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों? ये यहाँ पे कितना H है? 3. यहाँ पे कितना Cl है? 2. एक HCl बाहर निकाल दो. ठीक है, you will get here CH2 double bond CH CH2Cl. समझा मैंने क्या किया? 1 H will go with this Cl और एक Cl इसकी जगह पर आ जाएगा. So you are going to do over here substitution reaction rather than addition reaction. This is called as allylic halide. Is it allyl? है ना? पहले sp3 और फिर sp2 को attached है. Do you remember Yes, the ma'am. classification? Yes. So what is the name? अभी देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और हैलोजन भी है. किसको प्रेफरेंस मिलेगा? डबल बॉन्ड को. So it is 1, 2, 3. इसको भी नंबर दू? 4? No. Correct? So you are going to write down your 3-chloropropene. समझा? 1 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था. That is why it is 3-chloropropene. तो this is ब्रैकेट में लिखो. This is substitution reaction. This is the substitution reaction. आया समझ में? यहाँ पर आप एडिशन नहीं करोगे. If you are using here a very higher temperature, यहाँ सब जगह मैंने कोई टेम्परेचर नहीं यूज किया, राइट? बट हियर इफ यू आर यूजिंग अ वेरी हायर टेम्परेचर, यहाँ पे लिखो CCl4. हाँ, यहाँ पे आपने CCl4 वगैरह यूज किया है. यहाँ पर आपने यूज किया हायर टेम्परेचर. दैट टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग एडिशन रिएक्शन, मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl. अगर मैं हाई टेम्परेचर नहीं लिखती, राइट, बट आई एम राइटिंग ओवर हियर हायर टेम्परेचर. That is why I will be writing here this is as a substitution reaction. So 1 H is replaced by this Cl. Correct? So this is called as 3-chloropropene, which is your substitution reaction. Understood? लिखो, कॉपी करो. ये लिख दिया ना, यहाँ तक तो हो गया सबका, right? Write down this reaction. This is a special case when the alkene is heated with chlorine or bromine at a higher temperature. Instead of giving addition reaction, it gives substitution reaction. इसको स्टार मार्क करना. This is the exceptional case. ये 4 मार्क्स के लिए आता है MCQs में. हम लोग जल्दी से आयोडीन को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं? बिकॉज आयोडीन इज बल्की, खुद बहुत वजन है, उसको कहाँ बैठाएंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? तो फॉर दैट वी रिक्वायर अ स्पेशल कंडीशंस. ऐसे नॉर्मल कंडीशन में यू कैन नॉट पुट योर आयोडीन. सिमिलरली यू कैन नॉट पुट फ्लोरीन ऑल्सो बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है. तो वॉट एवर द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट, इट इज अनस्टेबल. तो बना के कुछ मतलब ही नहीं है ना कि उड़ गया पूरा. दैट इज वाई वी आर अवॉइडिंग एडिशन ऑफ फ्लोरीन. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? We have done so far Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's rule, preparation of vicinal dihalides, and also if you are going to use high temperature instead of getting addition. ये addition reaction था ना, bromine एक इधर ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया. But यहाँ पर this is not addition reaction, this is your
substitution reaction. 100% क्लियर है सबको? एनी डाउट? इसको सबने स्पेशल ऐसे केस मार्क किया? दिस इज द स्पेशल केस एट हायर टेम्परेचर. ओके ओके गौरी. चलो 2 हो गए रिएक्शंस. टोटल 5 है. 5. आज अपने को एटलीस्ट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करना है. चलो आगे सिखाओ. ओके अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग. रिएक्शन नंबर 3. फर्स्ट वन was from alcohol, second one alkene. ठीक है. थर्ड वन we will do here halogen exchange. ठीक है. we are going to do here halogen exchange. अभी यहाँ पर ना 2 रिएक्शन है. एक का नाम है फिंकलिस्टन रिएक्शन. इसको बोलते हैं नेम रिएक्शन. फिंकलिस्टन रिएक्शन. और दूसरे का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन. अभी नेम रिएक्शन है मतलब उन लोगों ने वो चीजें बनाई है. यू कैन नॉट रिप्लेस एनीथिंग. ठीक है. तो फिंकलिस्टन ने क्या किया? ही सेड दैट RCl alkyl chloride is treated with sodium iodide in the presence of acetone. एसीटोन सभी को पता होगा, नेल पेंट रिमूवर. सिर्फ आपको रिप्लेस करना है. दिस Na will go with this Cl. इट विल, यहाँ नीचे लिखती हूँ. ठीक है. इसका प्रोडक्ट इट विल फॉर्म NaCl plus Ri. बताओ क्या किया इसने? अभी मैंने आपको बोला ना, एडिशन ऑफ आयोडीन इज नॉट इजी, राइट? So for that I require a special condition and special reagent also. So RCl, that is called as halogen exchange. You are exchanging the chlorine by iodine using acetone, and this was first time given by scientists called as Finkelstein. That is why the reaction is famous as Finkelstein reaction. अब एग्जाम में कैसे आता है? Write a short note on Finkelstein reaction, or they will give you the reaction. They will ask you to complete the product and name the reaction. तो complete the product में क्या आ जाएगा? ये आगे लिखना तुम लोग. NaI plus NaCl, and this is called as Finkelstein reaction. Similarly, Swartz ने क्या किया? When he saw Finkelstein, he also got inspired, और उसने RCl को यूज कर दिया AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड. ओके. और उसने क्या बनाया? एकदम क्या बोलते हैं, नॉन कॉमन चीज, RF, जो बहुत मुश्किल है बनाना, प्लस AgCl. So that is called as Swartz synthesis or Swartz reaction. So here also he has done the replacement, substitution, exchange. AgCl will come out and fluorine will go over here. That is called as Swartz synthesis. ये AgF की जगह पर आप और क्या क्या यूज कर सकते हो? You can also use here mercurous fluoride, Hg2F2, arsenic fluoride, AsF3, antimony fluoride, SbF3. Means instead of this AgF, you can also use mercurous fluoride, antimony fluoride, arsenic fluoride. ठीक है. So these 2 reactions comes under which reaction? Halogen exchange. आया समझ में? एग्जाम में कैसे आता है? They will give you this पूरा complete. They will ask you which reaction it is. So it is a Swartz reaction or Swartz synthesis. ठीक है. ये कौन सा था? This is a Finkelstein synthesis. तो इसने क्या किया? Chlorine is replaced by iodine, और इसने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन के साथ. Understood? बच्चों, is it very clear to everybody? हाँ बोलो निश्चित. मैम फिंकलिस्टन रिएक्शन जो है उसको ही नेम रिएक्शन बोलते हैं ना, राइट? यस. ऑल द रिएक्शन जिसमें साइंटिस्ट के आप नाम लिखते हो, जैसे मैंने बोला मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन अगर बोला तो इट इज कॉल्ड एज नेम रिएक्शन. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो इट इज अ नेम रिएक्शन. ओके. तो जब हम साइंटिस्ट का नाम देंगे तो इट इज कॉल्ड एज नेम रिएक्शन. समझा? तो जितने अभी नेम, ये आपका पहला नेम रिएक्शन है. यस. तो ये आपका पहला नेम रिएक्शन है, उसको भी स्टार मार्क करके रखो. और एक सेपरेट 50 पेज की बुक बनानी है जिसमें आप लोग सारे नेम रिएक्शंस एक साथ लिखोगे. ठीक है. जैसे जैसे आपको मैं सिखाते जाऊंगी वैसे वैसे नेम रिएक्शंस आप वो बुक में भी एंटर करते जाओगे.
तो पढ़ने के टाइम पर कैसे बहुत फास्ट हो जाएगा, एकदम फास्ट। ओके, दिस इज द रिएक्शन, क्योंकि ये रिएजेंट ये सब तो फिक्स रहता है ना नेम रिएक्शन में, यू कैन नॉट चेंज। बीच में तुम लोग नहीं बोलोगे कि मिस यहाँ पे ना इसकी जगह में NaF ले लेता हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो उन लोगों ने बना दिया, उसको आप टच नहीं कर सकते हो, कॉपीराइट है उनका, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड। चलो लिखो, हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्पेलिंग समझा ना, फिंकलस्टीन, FINKELSTEIN, ये उसके नाम का स्पेलिंग है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? कुछ डाउट है किसी को? अभी किसी No, ने ma'am. पूछा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वॉट सिंथेसिस, तो ये दिमाग में घुस जाना चाहिए कि इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। अगर समझ लो आप लोग को ऐसा दे दिया CH3Cl प्लस AgF, ये तो कभी चेंज नहीं होगा ना, फिर आपको बोला कंप्लीट द रिएक्शन एंड नेम द रिएक्शन, तो फटाक से देखने का क्या करने वाले हो, रिप्लेसमेंट। इसी जगह कौन गया, मिथाइल फ्लोराइड, तो क्या नाम है रिएक्शन का, स्वाद सिंथेसिस। ये क्या हो गया, फिल्किंस्टन, तो ये चेंज नहीं होता, एसीटोन इज मस्ट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। चलो आगे पढ़ाऊं, एनी डाउट सो फार? थर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर, स्वॉट सिंथेसिस एंड फिल्किंस्टन, दोनों भी क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। Any questions? Any doubts? Anyone? Tanmay, Tejal, Apurva, any question? Hinal, No, ma'am. Clear. Nishil, Niti, Prathamesh, यस मैम क्लियर है। Parth, Yeah, ma'am. Pranav, Pranjal, clear? Clear, ma'am. Okay, चलो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? सर मैम इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग एंड Very न्यूक्लियोफाइल्स good. आर मतलब इलेक्ट्रॉन्स हेटर। Yes, and nucleus lovers, right? Yes, very या good. मैम। Next is electrophilic substitution. ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक बोल रही हूँ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल विल डेफिनेटली रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विल डेफिनेटली रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज, और ये बहुत पैसे वाले होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, उनके पास हमेशा लोन पेयर होता है, दे विल ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, याद आ गया। एंड दे आर न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन्स, तो इनको कौन अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन्स, है ना। और ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर्स, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर electrophilic substitution reaction. If you remember, once upon a time in your 11th standard, we have done Friedel-Crafts reaction. Do you remember that? Friedel-Crafts reaction, ठीक है, तो वही रिएक्शन अभी हम लोग करने वाले हैं
So this is your another name reaction called as Friedel-Crafts reaction. Now this is specially used for the preparation of aromatic halides, aryl halides. ठीक है, अब देखो reaction. This is your benzene plus Cl2. अगर मैंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल. आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर वेरी इंपॉर्टेंट अनहाइड्रस AlCl3. ठीक है, AlCl3 को बोलते हैं लुईस एसिड्स. व्हाट आर लुईस एसिड्स? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज लुईस एसिड्स. So anhydrous AlCl3 is called as Lewis acids. These are electron pair acceptors. वो बेचारे हमेशा गरीब होते हैं, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन्स भीख मांगते रहते हैं. ओके, सो यू आर हैविंग H here, yes or no? अब क्या होगा देखो, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा ना, H को निकाल के Cl आ जाएगा. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन, और ये H इस वाले Cl के साथ आ गया, ओ सॉरी इसके साथ आ गया, इट विल फॉर्म HCl. दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन. बोलो समझा सबको ये रिएक्शन? Is it 100% clear? Everywhere you are having H because benzene is C6H6. So one chlorine, देखो कितना chlorine था, Cl-Cl. This chlorine will go with this H and forms HCl. इसको substitute कर दिया, chlorobenzene. इसको बोलते हैं Friedel-Crafts reaction. This is called as Friedel-Crafts alkylation. Okay, क्योंकि आपने कौन सा ग्रुप ऐड किया यहाँ पर, सॉरी मैंने क्या लिखा, बेंजीन, बेंजाइल अल्काइल बोलते बोलते बेंजाइल लिखने जा रही थी. ठीक है, सो इट इज योर बेंजीन, करेक्ट. सो हियर दिस इज द अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ठीक है, अभी देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, सब साथ में लिखो. ठीक है, ये क्या है बताओ मुझे इसका नाम. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इट इज, टोलुइन. टोलुइन. वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज टोलुइन. और कॉमन नेम क्या है, मिथाइल बेंजीन, है ना. इसमें मैंने ऐड कर दिया ब्रोमीन. अभी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे Fe एज अ कैटलिस्ट इन अ डार्क मतलब एक बीकर लेने का, उसमें टोलुइन डालो, ब्रोमीन डालो, ढक्कन लगा के उसको कबर्ड के अंदर रख देना है, बंद कमरे में, कैसे आपके फिजिक्स में डार्क रूम होता है वैसा. तो हियर यू विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ये देखो यहाँ पर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो. यहाँ पे जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा. Yes. So one product you will get as orthobromotoluene. One bromine will go over here. Plus here you will get parabromotoluene. ठीक है? So CH3 and Br. अभी यहाँ पे मुझे बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए तो आप लिखो 2HBr. फिर आप इसको भी बैलेंस कर सकते हो 2. बट ऑर्गेनिक में कुछ बैलेंसिंग कुछ देखते नहीं है. ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन माई प्रोडक्ट्स because all these are your qualitative analysis not quantitative. समझा? So हम लोग सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस देखेंगे. समझा? तो अभी यहाँ पे मतलब ये एक H निकला, Br के साथ गया, ये एक निकला, यहाँ के साथ चला गया, तो ये आ गया. हम लोग इसको लिखेंगे ऑर्थोब्रोमोटोलिन एंड पैराब्रोमोटोलिन, या फिर क्या लिखेंगे 2-ब्रोमोटोलिन. ये IUPAC नेम है. ऑर्थो पैरा मेटा IUPAC में नहीं आता है. दिस इज कॉल्ड एज 4-ब्रोमोटोलुइन. ठीक है, और यू कैन राइट ऑन P, स्मॉल p, पैरा ब्रोमोटोलुइन. ठीक है, यहाँ पे चे तो लिखो ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन. ऑर्थो मतलब immediately after your functional group, adjacent to the functional group. पैरा मतलब opposite to the functional group, and मेटा मतलब alternate to the functional group. Yes. यहाँ पर क्यों नहीं पॉसिबल है मेटा, क्योंकि हमने किया था पता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट किया था हमने, तो बिकॉज ऑफ दैट मेटा इज नॉट पॉसिबल. ये सबको समझा? दिस इज ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन. ठीक है, लिखो इतना. हमने क्लोरीन भी ऐड कर दिया, ब्रोमीन भी ऐड कर दिया. अभी आयोडीन है ना पॉसिबल नेम, बताती हूँ मैं, पहले इतना लिखो. इज इट वेरी वेरी क्लियर? कुछ डाउट रहेगा तो पूछो अभी के अभी. Friedel-Crafts reaction. So today you have studied 3 different types of reactions, name reactions. एक था Finkelstein.
दूसरा स्वाद्स, तीसरा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो ऑलरेडी आपको पता है 11th में भी किया है आपने. Write it nicely in a separate proper notebook with a very nice handwriting. Yes, what is Friedel-Crafts reaction, Siddesh? See, what is happening here? This is your benzene and this is your chlorine. How many chlorines are there? There are 2 chlorines, correct? और benzene मतलब सब जगह पर HH होता है. So this H will go with this Cl. So what is your byproduct? HCl. और ये एक Cl बचा था ना, ये इसकी जगह पर आ जाएगा. So this is called as chlorobenzene. This is done in the presence of anhydrous AlCl3 and this was given by the scientists Friedel and Kraft. These two are 2 different names. So Friedel-Crafts reaction. इसको बोलते हैं Friedel-Crafts alkylation. Actually यहाँ पे halide ऐड किया है हम लोगों ने. ठीक है? Is it clear, Siddesh, now? Yes, miss. Okay. और ये तो समझ गया होगा ना, ऑर्थो एंड पैरा पर जाता है. हाँ मिस. डन. अच्छा, अभी इसके नीचे हो गया, सबका हो गया. नहीं मैम. ओके ओके ओके. मैम मैम ये मेटा पोजीशन पे वो प्लस आर इफेक्ट आता है कि माइनस आर इफेक्ट से नहीं आता है? अभी यहाँ पे देखो, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज है. नेगेटिव है. तो फिर आपका मतलब जहां पर ऑर्थो और पैरा वहां पे पॉजिटिव होगा, बराबर. यस मैम. ऑर्थो और पैरा मतलब पॉजिटिव, तो आपका नेगेटिव आर इफेक्ट. जब भी पॉजिटिव Okay. चार्ज घूमता है तभी नेगेटिव आर इफेक्ट, नेगेटिव हाँ. चार्ज घूमता है तो पॉजिटिव आर इफेक्ट. याद आया? हम लोगों ने देखो किया था, इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो सब अभी लगने वाला है तुम लोग को. 14 चैप्टर एंड 15 चैप्टर. एकदम आराम से समझ के करो, कोई घाई नहीं है. आई एम टेकिंग एवरीथिंग वेरी वेरी स्लोली. डन. ओके. प्रांजल का हो गया, मतलब सबका हो गया है ना प्रांजल? फिनिश्ड. चलो अभी आपको एक ये बताना है कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है. सपोज आई एम टेकिंग हियर बेंजीन एंड आयोडीन, तो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. तो यहाँ पर है ना, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? Because when your aromatic electrophilic substitution with iodine is taking place, this time reaction is not possible because it is reversible. समझा? अभी फिर भी मुझे रिएक्शन तो करना है ना? तो मैं क्या करूंगी अभी? I will take my benzene, I will put iodine, but इसके साथ में बहुत strong oxidizing agents यूज करूंगी. आइदर नाइट्रिक एसिड और इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको? पर आयोडिक एसिड. These two are very strong oxidizing agent. So under this condition, what is happening? Your iodo product formation is possible. Otherwise, it is not possible. तो ये आपको क्या मिलेगा? Iodobenzene. This is a special case. Yes or no? If I'll take directly under the very normal condition, reaction is reversible. That is why in order to get this iodo product, I have to use over here a very strong oxidizing agent. ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है?
it will oxidize others, itself gets reduced. तो वो यहाँ से I को oxidize कर देता है and it will give you your iodobenzene. समझा? लिखो पहले हेड, लिखो नीचे नोट, NOTE नोट. बोलू पहले नोट लिखो, बाद में ये कॉपी करो, ठीक है? नोट. मिस 1 मिनट रुको. हाँ ओके. ये क्वेश्चन भी बोलो बोलो. 4 मार्क्स के लिए आता है. Why iodobenzene formation is not possible, or to convert aromatic compounds into the iodobenzene, which reagent is to be used? तो अपने दिमाग में क्या है, आयोडो तो डालना है, आयोडीन ना. डालेंगे. लेकिन अरे मैं समझा रही हूँ प्रांजल. हाँ मिस. Then I'm saying no, बीच बीच में क्यों बोल रहे हो? मिस गलती से. ठीक है? So they will ask you which other oxidizing agents you can use. So you have to write down this. Write down NOTE. Note. Aromatic electrophilic substitution. Aromatic electrophilic substitution. Aromatic electrophilic substitution with iodine is reversible. With iodine is reversible. Full stop. In this case, use of HNO3 or HiO4. In this case, use of HNO3 or HiO4 removes Hi, hydrogen iodide, removes Hi by oxidation, removes Hi मतलब hydrogen iodide by oxidation to give iodine, I2, to give iodine, and iodo product is possible, and iodo product is possible, and iodo product is possible. Next line. F2 fluorine, F2 being highly reactive, F2 being highly reactive, fluoro compounds, FLUORO, fluoro compounds are not prepared by this method. F2 being highly reactive, fluoro compounds are not prepared by this method. समझ गया अभी? So benzene plus F2 reaction is possible? No, यहाँ पे reversible होता है. इसको irreversible करने के लिए हम लोगों ने क्या use किया बच्चों? यहाँ पे we have used nitric acid and HiO2. अभी copy करो दोनों reactions. मैम Yes. हाइड्रोजन आयोडाइड की बात का रिपीट कर सकते हो आप? हाँ, क्या बोला था मैंने? Removes Hi by oxidation to iodine.
by oxidation to iodine and iodo product is formed. And iodo product is formed. ठीक है, और आगे का भी बोलूं, फ्लोरीन वाला भी? नहीं मैम, वो लिखा मैंने। हाँ, ओके ओके, कॉपी डाउन दीज टू रिएक्शंस नाउ। दिख रहा है ना, वैसे तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली इधर पे आयोडीन लगाने का बस। मैम ये क्या लिखा है, आयोडो ना? किधर? लास्ट, हाँ वही हाँ, रिएक्शन का last। आयोडो बेंजीन, यस यस, आयोडो बेंजीन। Okay, done. Done, ma'am. Now just go through all the 4 reactions which I have taught you. एक और बाकी है, Sandpiers reaction, वो मैं भी 2 मिनट में ले रही हूँ। By that time you just go through, कुछ डाउट होगा तो पूछो। Any doubts? Anything which you did not understand? Anything बच्चों? Easy एकदम? मिस हम्म, मिस फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमेशा क्लोरीन को ही रिप्लेस करते हैं। yes yes, it will replace only chlorine. जो नेम रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसा दिया है एग्जैक्टली वैसा लिखने का, बिकॉज ऑल दीज आर गिवन बाय दी साइंटिस्ट, सो ओनली क्लोरीन को ही वो रिप्लेस करेगा। करेक्ट। एकदम इजी है, खाली अच्छे से रीड करोगे ना तो बस हो जाएगा। और आज के आज ही सब लोग इसका पढ़ाई करेंगे, सब लोग, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। चलो मैं सिखा दूं सैंडवियर्स। Okay, now the last one is called as Sandmeier's reaction. ठीक है? This is a most common method for the preparation of aryl halides. ठीक है? अभी यहाँ पे ये बनता कैसे है देखो। You have to take over here aniline. Aniline सबको पता है, NH2. This is called as aniline or aminobenzene. ठीक है? You are going to treat it with HX. अभी यहाँ पर जनरली जो X होता है that will be chlorine और bromine. अब वापस से हम लोग आयोडीन नहीं लेते हैं जल्दी से. You can take, but generally we don't take that. And you have to take here a very important thing called as sodium nitrite
ठीक है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस मतलब देखो कितना कम टेम्परेचर रहेगा, एकदम उसमें आइस डालते हैं। सो व्हाट विल हैपन नाउ, इट विल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल डायज़ोनियम हैलाइड, इसको बोलते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। सो इट विल फॉर्म हियर N2 प्लस एंड X माइनस, इसको जो N2 है इट इज कॉल्ड एज डायज़ोनियम। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर, दिस N विल कंबाइन विद दिस N एंड X कंबाइन रहता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग योर एनिलीन एंड दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, this combination, it is called as diazotization. The name of the process is diazotization. इसका कंप्लीट डिटेल है आपको अमाइंस चैप्टर में, जो इसका चौथा चैप्टर है ना एरोमेटिक्स का, सॉरी ऑर्गेनिक का, इन दैट यू आर हैविंग अ कंप्लीट डिटेल। इट इज कॉल्ड एज डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब जैसे मुझे डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा, आई कैन प्रिपेयर हियर, कॉपर डाल दिया मैंने, कॉपर एक्स। ठीक है, then I have to apply here 60 to 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बहुत इजी है, N2 को उड़ा दो। ठीक है, N2 गैस उड़ गई, डायरेक्टली X was attached over here, नाइट्रोजन गैस will evolve। ठीक है, दिस X, अभी जैसे मुझे ब्रोमीन बनाना है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अभी I will take CuBr। अगर मैंने यहाँ पे CuCl2 लिया तो क्लोरोबेंजीन आएगा, CuBr2 लिया तो क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यू विल गेट ओवर हियर ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस विल इवॉल्व। अगर आपको आयोडीन बनाना है तो यू हैव टू यूज ओवर हियर Ki। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आयोडीन विल गेट एंड N2 विल इवॉल्व। समझा? So this is called as Sandmeyer's reaction and this process is called as diazotization. Generally this is used for the preparation of dyes। जो आप colors मिलते हैं ना आपको, डार्क ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, जो डाइज मिलते हैं कलर्ड, इन दैट केस दीज आर यूज्ड। देखो रिएक्शन क्या है, एनिलीन इज ट्रीटेड विद, दिस शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, जो भी एसिड आप यूज करोगे इट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, NaNO2, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम नाइट्राइड एंड टेम्परेचर इज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे कंडीशन को बोलते हैं डायज़ोटाइजेशन। तो आपको क्या याद रखना है, यू विल गेट N2 एंड X माइनस। फिर आप जब इसको CuX के साथ करोगे तो X आएगा, means CuCl2 will give you chlorobenzene, CuBr2 will give you bromobenzene, Ki will give you iodobenzene, और सभी जगह कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, नाइट्रोजन गैस will evolve। Understood? This is called as Sandmeyer's reaction. This is your fourth name reaction for today, Sandmeyer's reaction. Understood? Please copy down this. ये डायज़ोटाइजेशन के ऊपर है ना एक पूरा बड़ा टॉपिक है which is there in your amines chapter, so that time again I will teach you in detail. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि डायज़ोनियम सॉल्ट से you can easily prepare here aryl halides. Okay? Yes. मैम अराइल हैलाइड्स में हेलोजन वही प्लेस देंगे ना जहाँ पे N2X है? हाँ मतलब वैसे कुछ नहीं है रे, मतलब मैंने अगर यहाँ पे NH2 लिखा है यहाँ पर ना, तो किधर पे भी जा सकते हैं, वैसे तो वैसे ही होता है जो तू बोल रहा है, हाँ बट यू कैन पुट इट, हाँ मतलब अगर यहाँ पे डाला तो यहाँ पे आ जाएगा, कहीं पे भी डालो, कोई इशू नहीं है। यस मैम। समझा सबको? डायज़ोनियम सॉल्ट से यू आर प्रिपेयरिंग अराइल हैलाइड्स, और ये बहुत कॉमन मेथड्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल मेथड से अराइल हैलाइड्स नहीं बना सकते वो डायज़ोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स, सैंडमियर्स रिएक्शन। कितने हो गए नेम रिएक्शन? 4, फिंकलिस्टन, स्वार्ट्ज, फ्रिडल-क्राफ्ट एंड सैंडमियर। कल तक सबको ये सारे नेम रिएक्शंस अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। समझ गए सब लोग? सब लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी से, बिकॉज इसका पेपर तो मैं बहुत डिफिकल्ट निकालने वाली हूँ। And by that time, for this Sunday, you start preparing your hydrocarbons also for MCQs, जो 11th standard में किया था, alkanes, alkenes, alkynes and aromatics. ठीक है, it will be MCQ type of test. You have to give the test online. मैं सर को पेपर सेंड कर दूंगी, सर will take the पेपर। ठीक है, और मैं ये भेज दूंगी आप लोगों को।
इसका आंसर की। चीटिंग मत करना उसमें। जो लोग लेक्चर में नहीं थे वो लोग नहीं बैठेंगे और क्या। बट यू हैव अटेंडेड ऑल द हाइड्रोकार्बन्स ना आशीष? No, You have ma'am. attended, you have not attended JEE नीट वाला सेशन जो MTG में से किया था? Yes, ma'am. हाँ तो you were there ना? मैम उसमें तो फास्ट बताए थे। फास्ट मैंने नहीं मुझे बताया समझ था, में तू 11th में नहीं था। You were not there in 11th. यस मैंने मैम। फास्ट नहीं बताया था, मैं कुछ फास्ट नहीं बोलती हूँ। सेंटेंसेस बराबर यूज किया कर तू। नहीं मैम वही मतलब कि मतलब उन लोगों को पढ़ा के हो गया था ना, तो आपने मतलब हाँ उन लोग को। तो तुझे सर ने बोला था कि since you have taken admission for 12 you can sit for 11th standard, it is not compulsory for you, but जिनको मैंने 11th से पढ़ा है उनके लिए वो compulsory है। फास्ट नहीं पढ़ाती हूँ मैं कुछ भी, I go very slow. Done बच्चों? Is it very clear today's lecture? Any questions, any doubts? I hope everybody understood this. यस मैम क्लियर है। Okay. ठीक है, give me a very quick yes into the chat box. Is it very clear? अभी आप लोगों को बायो लेक्चर है ना कुछ लोगों को? I'll leave you 5 minutes early. You can go to the washroom and all, and then you can join bio lecture. Okay. So here we have completed with the methods of preparation of alkyl halides and aryl halides. ठीक है, अगर किसी ने पूछा what is the best method for the preparation of aryl halides, so it is Sandmeyer's reaction. तो नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। So just keep on writing, do the practice on the paper. सिर्फ orally पढ़ोगे you will forget everything. So you have to practice organic chemistry. You will feel it is very easy, मेरे को सब आता है, but ऐसा नहीं है, you will forget. ठीक है? Should I end the meeting now? Because some people are having bio also. यस मैम। नहीं, जो लोग 11th में नहीं थे वो लोग MCQ का टेस्ट मत दो। देना चाहते हो तो दे सकते हो, योर विश, बट जो लोग 11th में थे उनके लिए वो कंपलसरी है, यू हैव टू गिव दैट टेस्ट। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो बाय सेम मैम। टाइमिंग। बाय मिस, बाय थैंक यू मैम। मिस। बाय बाय।